ٹھیک ہے جی السلام علیکم خالد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خالد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شکر ہے سر اللہ کے کرم۔ یہ ابھی تک اسکیجول آ رہا ہے، لائیو نہیں ہوئے ہم؟ آپ کی ویڈیو اسٹاپ ہو گئی۔ آئی تھنک آپ کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلے ہے۔ جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، لائیو شو ہو رہا ہے میرے پاس۔ جی السلام علیکم خالد بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم ویورز، ہمارے ساتھ آج خالد بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم دراز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے آج۔ جی سب سے پہلے خالد بھائی تھینک یو فار گیونگ اس دا ٹائم، اور ہماری فیملی کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ اور اس میں سب سے پہلے بتائیے گا کہ دراز پہ بیسیکلی اپرچونٹی کیا ہے؟ ہم تو امیزون کی بات کرتے ہیں کہ بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے، سو اسی طرح تھوڑا سا ڈسکرائب کریں ذرا کہ دراز کتنی بڑی مارکیٹ پلیس ہے۔ جی بہت شکریہ جبیر بھائی، پہلے تو انوائٹ کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، لیکن دراز کی اگر ہم بات کریں تو ہم امیزون کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم سب امیزون یقیناً بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے۔ ایک تو وہ اوور آل ورلڈ کام کر رہے ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ میں وہاں سپلائز دے رہا ہے امیزون اپنی۔ دراز پاکستان کا سب سے بڑا مارکیٹ پلیس ہے۔ ہم کیونکہ پاکستان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس، لیکن ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا مارکیٹ پلیس ہے دراز بنگلہ دیش میں بھی کام کر رہا ہے، علی بابا اون کمپنی ہے ایک ہی پلیٹ فارم سے، اور دراز کے نام کے ساتھ ہی دراز سری لنکا میں ہے، نیپال میں ہے، میانمار میں ہے، 6 ملکوں میں ہے، انڈیا اور افغانستان میں نہیں، ساؤتھ ایشیا میں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں ہمارے پاس صرف چائنا رہ جاتا ہے۔ چائنا میں کیونکہ علی بابا اون کمپنی ہے تو علی ایکسپریس ہے ان کی اپنی کمپنی کی ویب سائٹ جو دراز سے پہلے تھی، ریٹیل کا کام وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پر اس کو لانچ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایسٹ ایشین کنٹریز جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جن میں ملیشیا ہے اور سنگاپور، وہاں پر بھی علی بابا اون کمپنی دراز ہی کام کر رہی ہے، وہاں نام چینج ہے، اس کا لزادہ کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہی کمپنی ہے جس کو علی بابا اون کرتا ہے، جس کا سی او ایک ہی ہے ساؤتھ ایشین، وہ سنگاپور بیسڈ ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے، یہ پچھلے 2 سالوں میں اچھا خاصا ٹریفک بڑھا ہے، آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ بڑھا ہے، لیکن جتنی بھی آن لائن شاپنگ ہوتی ہے پاکستان میں، اس میں 77% جو ہے دراز سے ہو رہی ہے آن لائن شاپنگ کی۔ تو آپ اس سے اندازہ لے لیں، اگر 100 لوگ آن لائن خریداری کرتے ہیں، 70% لوگ جو ہے صرف دراز سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، باقی 30% کچھ فیس بک پیجز سے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ادر ای کامرس ویب سائٹس ہیں ان سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 70% آن لائن خریدار پاکستان میں جو آن لائن پرچیز کرنے والے لوگ ہیں تو وہ جو ہے دراز کے پلیٹ فارم سے کر رہے تھے۔ دوسری دراز کی جو اگر ورتھ کی بات کریں تو اس پہ اس وقت جو کرنٹ رپورٹس ہیں، پچھلے یہ لاسٹ جون جولائی جو گزرا ہے، جون میں ہر سال دراز انسائٹ جاری کرتا ہے اپنی رپورٹ کہ کتنا ٹریفک آ رہا ہے، کیونکہ اے پی آئیز اوپنلی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے ڈائریکٹلی ہم کلک کر کے معلوم کر لیں کتنا ٹریفک آ رہا ہے۔ تو دراز خود اپنی جو رپورٹ جاری کرتا ہے اس کے مطابق منتھلی 6 ملین سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں دراز کی ویب سائٹ، کسٹمرز جو ریگولر کسٹمرز ہیں 6 ملین سے زیادہ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 2.5 لاکھ کسٹمرز آتے ہیں دراز کے پلیٹ فارم پہ۔ یہ دراز کی ورتھ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ میں بات کریں، پاکستان کی ایمرجنگ انڈسٹری ہے، یقیناً ہم امیزون کا مقابلہ اگلے 4-5 سالوں میں بھی شاید نہ کر پائیں۔ اس میں بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ ایک تو وہ سب سے بڑا ڈفرینس، میں نے کچھ عرصہ پہلے پوسٹ لگائی تھی اپنے بی ایف ٹی گروپ میں بھی، ڈفرینٹ دوسرے گروپس میں بھی، کچھ گروپس نے مجھے بلاک کر دیا اس پوسٹ کی وجہ سے۔ اس وقت تک جب میں نے وہ پوسٹ لگائی تھی تب دراز پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔
جب یہ ہم نے بات کرنا شروع کی تھی کہ ہم امیزون کی بات کر رہے ہیں, علی بابا کی, یا شاپیفائی, باقی بہت سارے پلیٹ فارمز کی, وش کی بات کر لیتے ہیں, ای بے کی بات کر لیتے ہیں, پاکستان میں اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس کی بات نہیں کرتے. تو لوگوں نے پوچھا اس میں ڈفرینٹ کیا ہے, تو میں پوری ایک ڈیٹیل پوسٹ بنائی تھی جس میں میں لکھا سب سے پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ ایج کا جو ڈفرینس ہے امیزون اور دراز کا. امیزون شروع ہوا 1995 میں, آج اس کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے. تو دراز کی عمر جو ہے 8 سال ہے. 2012 میں دراز پاکستان جو اسٹارٹ ہوا تھا. تو 25 سال کے ایک میچور بندے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور 8 سال کے ایک بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یہ ڈفرینس ہوتا ہے. ایج ڈفرینس کو آپ کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسرا جو ڈفرینس ہے دراز اور امیزون کے درمیان وہ ہے ڈیفینس والا, ڈیفینس اور بحریہ ٹاؤن والا. دوسرا لالو کھیت, یا آپ لاہور کا کوئی کچی آبادی کا نام لے لیں, میں اتنا واقف نہیں ہوں لاہور اسلام آباد سے, تو وہاں کی کوئی کچی آبادی کا, یا میں کوئٹہ کی ایگزامپل دیتا ہوں, ایک سریاب روڈ کا رہنے والا ہے, ایک کوئٹہ کینٹ میں رہنے والا ہے, دو الگ ڈفرینس ہے. امیزون جو ہے برگر فیملی کا بچہ ہے, وہ ڈفرینس ہے. دراز جو ہے لالو کھیت کا, کراچی کا لالو کھیت آپ نے سنا ہوگا, لیاری سنا ہوگا, اس کا بچہ ہے. تو یہ ڈفرینس ہے دوسرا جو ان مارکیٹ پلیسز میں ہے. پہلا ایج والا ڈفرینس آ گیا. تیسرا آڈینس کا ڈفرینس ہے. کنزیومر جو ہے ہمارے اوور آل, بہت آسان الفاظ میں کہا جائے وہ سارے گورے ہیں, ہم سارے گندمی رنگ والے ہیں. آسان ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری آڈینس میں بحیثیت قوم جو ہے جو ڈفرینس ہے وہاں پر امیزون جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا, صرف اسی کو لے لیں, امریکنس کو, وہ گورے ہیں رنگ کے, ہم رنگ کے گندمی ہیں, جو بھی ہے یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو اس ڈفرینس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. رنگ کے علاوہ کیا کیا ڈفرینسز ہیں بحیثیت قوم ہم دونوں میں, یہ والا ڈفرینس ہے پلیٹ فارم کے درمیان. تو یہ جب بھی ہم سیل کرنے جائیں گے یا ہم سیلر بنیں گے دراز کے پلیٹ فارم پہ, ہمیں ان تمام ڈفرینسز کو مد نظر رکھنا ہوگا. ادروائز آپ روتے رہیں گے کہ مجھے مسئلے آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. یہ مسئلے آپ کو سمجھنے ہوں گے کہ آپ جو ہے دراز کے پلیٹ فارم کی ٹوٹل ایج کیا ہے, وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا, امیزون کی ایج کیا ہے, وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا, وہ کہاں پر کام کر رہے ہیں, ان کی آڈینس کیا ہے, ان کے کسٹمرز کون ہیں, اور دراز پر جب آپ کام کر رہے ہیں آپ کی آڈینس کون سی ہے, آپ کے کسٹمرز کون سے ہیں. یہ بیسک انٹروڈکشن جو میں اکثر شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ ڈفرینسز ہیں, یہ آپ کو جاننے پڑیں گے. تو سب سے پہلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے دراز کے اوپر اپنا سیلر اکاؤنٹ اوپن کرنا. تو وہ تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ یہ کتنا ایزی سٹیپ ہے, کہیں امیزون کی طرح مشکل تو نہیں ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم پاکستان سے رہ کے سری لنکا جس طرح آپ نے بات کی, ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز ہیں دراز کی, تو ان پہ ہم سیلنگ کر سکتے ہیں یا صرف دراز جو ہے وہ پاکستان میں ہی الاؤ کر رہا ہے پاکستانیوں کو؟ جی فی الحال اب تک جو ہے دراز پاکستان صرف پاکستان میں کام کرتا ہے, دراز بنگلہ دیش صرف بنگلہ دیش میں. ایک اپرچونٹی دی ہے انہوں نے اپنے چائنیز سیلر کو, علی بابا گروپ نے, وہ تمام کنٹریز میں سیل کر رہے ہیں. وہ بنگلہ دیش میں بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں, نیپال میں بھی, سری لنکا میں بھی, لیکن باقی لوکل سیلرز صرف اپنے اپنے ملک میں سیل کر رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں چانسز ہیں, اب جیسے آپ دراز کے سیلر سینٹر پہ جاتے ہیں, سائن اپ کرتے ہیں, وہاں ایک اب الگ سا آپشن آ گیا ہے گلوبل سیلر رجسٹریشن کا. فی الحال وہ چائنیز کے لیے اوپن ہے, پہلے یہ آپشن ہی نہیں ہوتا تھا, پہلے صرف ایک ہی سیلر رجسٹریشن فارم ہوتا تھا. وہ جو چائنیز سیلر کو آن بورڈ کر رہے تھے, اس سے پہلے 400 سیلر تھے, اب 700 چائنیز سیلر آ چکے ہیں دراز کے پلیٹ فارم پر. تو اب وہ فارم میں اپلائی کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی چائنیز سیلر آن بورڈ ہو سکتے ہیں. لیکن چانسز ہیں کہ اگلے 1 سال کے اندر یہ تمام ملکوں میں کنیکشن اوپن کر دیا جائے, آپ پورے ساؤتھ ایشیا میں بیچ رہے ہوں گے. جو سیلر رجسٹریشن کا ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی آسان ہے پاکستان میں اب تک, کیونکہ اگر آپ انڈیویجول اکاؤنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو صرف اپنا شناختی کارڈ چاہیے, اس کے ساتھ بینک اکاؤنٹ چاہیے, اسی شناختی کارڈ کے اوپر کوئی رجسٹریشن فی نہیں ہے. دراز صرف سکسیزفل سیل کے اوپر آپ سے کمیشن چارج کرتا ہے. جب بھی آپ کی سیل جنریٹ ہو جائے گی, وہ آرڈر کمپلیٹلی ڈلیور ہو جاتا ہے آپ کے کسٹمر تک, اس سے آپ سے کمیشن چارج کرتا ہے. وہ کمیشن ڈفرینٹ ہے, 2% سے اسٹارٹ ہوتی ہے 20% تک. ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اوپر ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے دراز کا. گروسریز کی کیٹیگری میں اگر آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو 3% سے 4% تک ہے. فیشن کیٹیگری میں 13 سے 17% کمیشن ہے. لیکن یہ سکسیزفل سیل کے اوپر جنریٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی منتھلی فی نہیں ہے, کوئی آپ سے فکس چارجز نہیں لیتا دراز. اگر آپ بزنس اکاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں تو منیمم کرائٹیریا بزنس اکاؤنٹ کا ہے کہ آپ کا بزنس سول پروپرائٹرشپ میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے. سول پروپرائٹرشپ آپ کا FPR سے رجسٹرڈ ہوتا ہے, وہ 15-20 منٹ کا
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑनलाइन 20 मिनट में फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में आप अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्टर कर सकते हैं। फिर बैंक अकाउंट, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट इंतहाई माजरत के साथ बहुत वीक है। बैंक अकाउंट खुलवाने में आपको एक हफ्ता लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं उसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अकाउंट का। उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, हर बैंक की फिर अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आपको एक हफ्ता लग जाता है। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आप दराज का बिजनेस अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। अब नई पॉलिसी के तहत दराज मॉल का टैग सिर्फ जो है बिजनेस अकाउंट्स को ही मिलता है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता। जब हमने शुरू किया था, हमारा एक स्टोर है, पहले इनवाइट ओनली प्रोग्राम के तहत ही हुआ था। दराज मॉल पहले इनवाइट ओनली प्रोग्राम था। आई गेस खालिद भाई के कोई इंटरनेट का इशू है, सो मीनवाइल अभी बस वो थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो आपके इस सेशन के हम इंशाल्लाह एंड पे रखेंगे, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हों वो खालिद भाई आराम से जो है वो आराम से आपके जो है वो आंसर्स कर सकें क्वेश्चंस को। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक, ताकि हम सेशन को दोबारा से कंटिन्यू करें। और उतनी देर में बेसिकली आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शंस में पोस्ट करते रहें, ताकि ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप जो है वो इजीली जो है वो रिमेंबर रख सकें, ये ना हो कि आप भूल जाएं। जी खालिद भाई, आई थिंक यू आर बैक। जी यू आर बैक। मेरे इंटरनेट कनेक्शन में शायद एरर आया था। हाँ जी सो वी वर टॉकिंग अबाउट के जी दराज की जो बिजनेस अकाउंट है उसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा बता रहे थे। वो इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू आया था, उस वजह से ऑफलाइन हो गया। दराज मॉल की इंफॉर्मेशन है, अगर आप दराज मॉल का टैग लेना चाहते हैं, दराज मॉल के टैग के साथ आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आई गेस फिर प्रॉब्लम आ रही है खालिद भाई आपके इंटरनेट के अंदर, बिकॉज आपकी तो अब नई पॉलिसी के तहत दराज मॉल का टैग सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स को ही मिलता है। बिजनेस अकाउंट के लिए हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट डिस्कस कर ली। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं भी है SCCP के साथ। जी, आपकी वॉइस मुझे दरमियान में कट के आ रही है, मैं बात कंटिन्यू रखूं? आप जी कंटिन्यू करें। जी, ये मेरे इंटरनेट कनेक्शन में इशू है या आपके में? सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी वॉइस। अच्छा ठीक है, थैंक यू। खालिद भाई आपके इंटरनेट का कोई थोड़ा सा इशू है, काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चेक कर लें, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट स्टेबल, क्योंकि आपकी ना आवाज़ आ रही है और ना ही आपकी पिक्चर शो हो रही है हमें। सो मीनवाइल आप व्यूवर्स अपना कमेंट्स जो है वो पोस्ट करते रहें, क्योंकि थोड़ी देर में ही खालिद भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। उनके कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है। सो अभी जो जितने भी कमेंट्स हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो हमारे उसमें पोस्ट करते रहें, ताकि आप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो हैं वो खालिद भाई हमें आंसर करके बताएं, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आ रही जो दराज के अंदर इस वक्त जो लोग काम करना चाह रहे हैं, जो जिससे जैसे खालिद भाई ने बताया कि काफ़ी अच्छी मार्केट प्लेस है लोकल सेलर्स के लिए, तो वो इजीली आप जो है उसको अपने सॉरी, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन तो है, एक लो होता है तो दूसरा फिर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक कनेक्शन में। वो मैंने अब ऑटो रिस्टोर क्लोज कर दिया है, तो अब इंशाल्लाह नहीं आएगा इशू। जी खालिद भाई कंटिन्यू कीजिएगा जहां से आपने छोड़ा था कि बिजनेस अकाउंट के बारे में आप बता रहे थे कुछ। हमारा ये सवाल, बिल्कुल ये सवाल हमारा तकरीबन हो गया। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया कि 2 अकाउंट टाइप है बेसिकली, एक बिजनेस अकाउंट टाइप है, एक इंडिविजुअल अकाउंट टाइप है। दोनों की रिक्वायरमेंट मैं बता दी कि आपको क्या क्या चाहिए। इसके अलावा आपका कोई सवाल? जी खालिद भाई इसमें ये बताइएगा कि आपको जैसे पता है कि अभी टूल्स वगैरह तो है नहीं, तो हम दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अब आपका कोई? जी
दराज पे बिकॉज अभी आपको पता है कि अभी हमारा टूल्स नहीं है, सॉफ्टवेयर जी टूल्स नहीं बिल्कुल, ऑनलाइन सेलिंग में स्पेशली जब हम मार्केट प्लेसेस मॉड्यूल में सेल कर रहे होते हैं, सबसे अहम स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। जी जी बिल्कुल, हमारे पास एपीआईज नहीं है, टूल्स नहीं है इस तरह से, और उसके बावजूद ये अहम तरीन पार्ट होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का, हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का। लेकिन मैं इसके लिए अक्सर मिसाल दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी सेशन में कि जितने भी टूल्स हैं अमेजोन पे हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 2014 के लास्ट क्वार्टर में रिलीज हुए या इसके बाद रिलीज हुए। 2015 से बेसिकली हम कहते हैं कि अमेजोन के जितने भी टूल्स हैं 2015 या इसके बाद आए हुए हैं, इससे पहले कोई टूल नहीं था। आप हिस्ट्री जाकर देखें, जो लोग पहले सेल कर रहे थे तो वो प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते थे। अमेजोन तो 1995 में बना था, 20 साल तक लोगों ने 15 और 5 हाँ 20 साल तक किस तरह लोगों ने जो है प्रोडक्ट हंटिंग की, अमेजोन पे सेल कर रहे थे, और उस वक्त सक्सेस रेशो भी बहुत डिफरेंट था। ये भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कभी फिर डिस्कस कर लेंगे कि जब तक टूल्स नहीं थे सक्सेस रेशो ज्यादा था। उसकी क्या क्या वजूहत है, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जब से टूल्स आए 2015 के बाद अमेजोन पे ओवरऑल स्पेशली प्राइवेट लेवल का सक्सेस रेशो गिर गया टूल्स आने के बाद। तो जिस तरह 15 साल पहले लोग अमेजोन पे बेचते थे टूल्स के बगैर रिसर्च करके, हम उसी तरह आज दराज पे रिसर्च कर रहे हैं। जिस तरह टूल्स नहीं है हमारे पास, मैनुअल रिसर्च करते हैं। मैनुअल रिसर्च में अब भी हमारे पास खैर उतनी बुरे हालात नहीं जितने अमेजोन के वक्त लोगों के पास थे जब टूल्स नहीं थे। तो अब गूगल ट्रेंड्स का एक टूल होता है, उसको हम प्रॉपर टूल की तरह नहीं है कि एग्जैक्ट हमें सर्च वॉल्यूम दे दे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस भी कंट्री में आप सर्च कर रहे होते हैं वो आपको हेल्प फराहम करता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। जो भी कीवर्ड आप टाइप कर रहे हैं या प्रोडक्ट का नाम आप टाइप करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड्स पता चलता है, मुल्क के अंदर कितने फीसद ये ट्रेंड या सर्च वॉल्यूम इसका है। एक बेहतरीन टूल है, और गूगल से बड़ा डेटा सेंटर इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। गूगल की मदद हम लेते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक के एड फाइंडर्स होते हैं, मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं जो आप फेसबुक पे लगाते हैं, गूगल क्रोम में प्लगइन इंस्टॉल करते हैं क्रोम एक्सटेंशंस को, और फेसबुक पर हम एड्स फाइंड करते हैं कि लोकली पाकिस्तान में किस तरह के एड्स चला रहे हैं। जो डिफरेंट सेलर्स जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसमें खुद दराज के एड्स आ जाते हैं, दराज पे सेल करने वाले बाकी सेलर्स हैं किस तरह के एड चला रहे हैं। जिन एड पे अच्छा कन्वर्सेशन रेट शो हो रहा होता है हम उन प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट में डालते हैं कि ये 10 प्रोडक्ट हैं जिन पे बार बार कन्वर्सेशन रेट आ रहा है या इस पे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। फेसबुक एड के नीचे नजर आ रहा होता है कि कितने बार उस पर क्लिक हुआ है, कितने लोगों ने कमेंट किया है। अगर ये एड 10 दिनों से मुसलसल चल रहा है, फेसबुक एड्स की पूरी अपनी साइंस है, जो लोग समझते हैं वो बेहतर समझ रहे होंगे कि उस पर अगर कन्वर्सेशन रेट आ रहा है, आपको अंदाजा हो रहा है, तो वो 10 प्रोडक्ट हम अपने पास लिस्ट कर लेते हैं। तीसरा फिर हम दराज का अपना इंटरनल सर्च यूज करते हैं जो सबसे पावरफुल टूल है इस वक्त भी। दराज.pk पे जाएं आप, वेबसाइट आई थिंक खालिद भाई के फिर कोई इंटरनेट का इशू आ गया है। मीनवाइल वो थोड़ी देर में अभी आते हैं तो वी विल कंटिन्यू द सेशन, और मीनवाइल आपके जो क्वेश्चंस हैं काइंडली पोस्ट करते रहें, और इंशाल्लाह उनके जवाब जो हैं वो खालिद भाई जल्द आके हमें उसका जवाब दे देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इट्स कह लें कि अगर जिन लोगों के पास अमेज़ॉन पे सेलिंग करने का मौका नहीं मिलता उनके लिए ये दराज एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी खालिद भाई यू आर बैक। सॉरी जी, माजरत में मुझे लगता है मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कोयटा में। तो हम टूल्स की बात कर रहे थे। तीसरा जो बेहतरीन टूल है वो हमारे पास दराज का इंटरनल सर्च होता है। दराज.pk पे हम जाते हैं, वहाँ कोई भी हम कीवर्ड टाइप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 10 और रिलेवेंट कीवर्ड आपको दराज सजेस्ट करता है जो मुख्तलिफ कस्टमर जो है सर्च कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लें, आप दराज.pk ओपन करें, वहाँ पर फेयर लिखें तो फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, फेयर मास्क वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। तो ये 10 वो रिलेवेंट कीवर्ड जो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं आपके अलावा बाकी लोगों ने सर्च किए, तो ये हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं सिर्फ कि कौन से कीवर्ड बेहतरीन सर्च हो रहे हैं। इनको आप लिस्ट कर लेते हैं। इसी तरह आपने 4 प्रोडक्ट सर्च करनी थी, अपने 4 रिलेवेंट कीवर्ड एक कीवर्ड टाइप करेंगे तो 10 डिफरेंट कीवर्ड आपको मिल जाएंगे।
फिर जो कीवर्ड आपने टाइप करना था कंप्लीट लिख लें। आप फेयर एंड लवली आप सर्च कर रहे थे या फेयर एंड हैंडसम सर्च कर रहे थे, तो आप कंप्लीट कीवर्ड लिखेंगे तो उसके साथ टोटल लिस्टिंग आ जाएगी प्रोडक्ट जो आप सर्च कर रहे हैं। अब इनको हम दराज इंटरनल सर्च की मदद से ही इनको डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट टूल्स अप्लाई कर फिल्टर्स अप्लाई करके एक्चुअली जो है सर्च कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने टोटल ओवरऑल लिस्टिंग देख ली कि कितनी लिस्टिंग है। सेलर का एक्चुअली हमें पता नहीं चलता दराज में टूल्स कितने सेलर्स हैं, लेकिन लिस्टिंग पता चल जाती है कि कितनी लिस्टिंग है। फेयर एंड लवली आप सर्च करें आपको 1500 लिस्टिंग नजर आ जाएगी। अब इसमें से चाइनीज सेलर निकाल दे, एक फिल्टर सबसे पहले ये लगा लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि आपका चाइनीज सेलर के साथ कंपटीशन बनता ही नहीं है, तो उस मामले में पड़े ही ना आप। प्राइस कंपटीशन भी नहीं कर सकते आप। दूसरा एक बहुत बड़ी वजह होती है जो इवन जो लॉयल कस्टमर्स हैं पाकिस्तान में खरीदारी करने वाले रेगुलर कस्टमर्स, वो चाइनीज सेलर से खरीदना पसंद नहीं करते दराज के प्लेटफॉर्म पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप वजह ये है कि चाइनीज सेलर जब अगेन उनके कोई इंटरनेट का आई थिंक इशू आ गया है, उनके स्टेबल नहीं है आई थिंक जिस जगह से वो हमें ज्वाइन किया उन्होंने। मीनवाइल अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप पोस्ट करते रहें, और ये बेसिकली सेशन रखा गया था कि ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि जो लोग काम नहीं कर पा रहे अमेज़ॉन के ऊपर, कोई हर्डल्स हैं जिनका कोई मुश्किलात आ रही हैं, उनको कोई हेल्पर नहीं है उनके पास, तो उनके पास लोकल मार्केट प्लेस में एक दराज की सूरत में ऑलरेडी एक हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जी खालिद भाई आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी जी खालिद भाई। अच्छा अगला कोई बात नहीं। जो अच्छा, जी 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 खालिद भाई इसमें ये भी बताइएगा, अब आपने 3 टूल्स बता दिए ये प्रोडक्ट हंटिंग के, तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो इसमें हमें दराज ये बताता है कि ये एक बेस्ट सेलर है इस प्रोडक्ट का, ताकि हम उसको फर्दर एनालाइज कर लें या उसको फर्दर एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें उसका, क्योंकि अमेज़ॉन पे जब हम जाते हैं कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, आपको भी पता है उस पर बेस्ट सेलर का टैग लिखा हुआ नजर आता है। सो ऐसी कुछ चीज़ दराज हमें प्रोवाइड करता है ताकि हमें पता लग जाए कि यार इस बंदे की सेलिंग सबसे अच्छी है। आपकी आपकी वॉइस काफी ड्रॉप हो रही थी, लेकिन मैं जहां तक समझा हूं कि आप पूछना चाह रहे थे कि दराज ये बताता है बेस्ट सेलर्स कौन से हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। ये भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती डायरेक्टली कि कौन से सेलर्स हैं, लेकिन ओवरऑल हम फिर वही अंदाजे लगा रहे होते हैं जैसे 2015 से पहले लोग कर रहे थे अमेज़ॉन के ऊपर। हम रिव्यू देख लेते हैं लोगों के, जो जो कीवर्ड हमने सर्च किया प्रोडक्ट हमें नजर आई, हम उनके पहले रिव्यूज देख लेते हैं, टॉप रिव्यूज किन किन सेलर्स के पास है। जो बेहतरीन रिव्यूज लेने वाले हैं हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी सेल ही सबसे ज्यादा होगी। ओवरऑल रिव्यू रेशो जो है दराज के प्लेटफॉर्म पे 4 से 6% तक होता है। 4% 3 से 4% मिनिमम है, 6% मैक्सिमम जाता है। ऑर्गेनिक रिव्यूज की बात कर रहे हैं हम। अब एक ट्रेंड जारी हो रहा है अमेज़ॉन की तरह रिव्यू लेने खरीदने बेचने वाला। मैं इस मामले में बहुत डिफरेंट राय रखता हूँ। पाकिस्तान में ये फायदे से ज्यादा शायद नुकसानदेह साबित होगा। मैं इसी वजह से ब्लॉक हुआ हूँ कुछ ग्रुप से कि मैंने बात की थी कि ये ट्रेंड ना लाया जाए पाकिस्तान में। हमारे ओवरऑल जो अखलाकियात है वो बहुत कमज़ोर है इस वक्त। बहसीत कौम हमारी अखलाकियात पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये हाँ जी, बेसिकली फिर आई थिंक उनके कोई नेटवर्क का इशू है, और होपफुली ही विल जॉइन इन फ्यू मिनट्स। मीनवाइल अपने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वो पोस्ट करते रहें। और सेकेंडली मैं यही बता रहा था कि दराज इटसेल्फ देखें एक लोकल मार्केट की हमारी एक अपनी प्रोडक्ट है, तो वी शुड सपोर्ट कि हम ऐसे सेलर्स भी हैं जिनके पास लाइक इतनी इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती अमेज़ॉन पे काम करने के लिए। आई थिंक खालिद भाई आ गए हैं। जी सॉरी, मैं जारी रखूं।
जी जी आप जारी रखें, बिकॉज आपके ना थोड़ा सा नेट का इशू है आई थिंक। जी बिल्कुल। दूसरा हम बता देते हैं जी, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पता नहीं क्यों आज। इससे पहले मैं एक लाइव सेशन कर चुका हूँ मरियम के साथ, उस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं आया था, पता नहीं कहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है जी। तो दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि हम रिव्यूज़ से अज्यूम कर लेते हैं कि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उतनी ज़्यादा सेल्स, तो 4 से 6% रिव्यू रेशो है, उसी की बुनियाद पे हम सेल्स जनरेट, और जो लिस्टिंग की एज है वो हम पहले रिव्यू या पहला जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर उससे अंदाजे लगा लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन किया किसी कस्टमर ने लिस्ट के ऊपर या पहला रिव्यू पोस्ट हुआ तो वही लिस्टिंग की एज काउंट करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आज से 1 महीना पहले पोस्ट हुआ, आज जो है 4 रिव्यूज़ आ गए हैं 20 दिनों के अंदर, तो हमें इससे अंदाज़ा कर लेते हैं कि कितने रिव्यू परसेंटेज की सेल हुई होगी महीने में, कौन सा सेलर बेहतरीन सेल कर रहा है। ये हमारे पास तरीक़ाकार होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग और सेलर या ज़्यादा सेल वेलोसिटी चेक करने की, कितनी सेल वेलोसिटी है किसी प्रोडक्ट की। अच्छा खालिद भाई ये भी बताइएगा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट्स तो नहीं है जो दराज अलाउ नहीं करता अपने जी जी प्लेटफॉर्म पे भाई। करने के लिए? हम क्वेश्चन ले रहे हैं जुबैर भाई? नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा था कि खालिद भाई आई थिंक अगेन उनके कोई इंटरनेट का काफ़ी इशू आ रहा है आज, और वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि पता नहीं खालिद भाई की तरफ से इशू क्यों आ रहा है इतना इंटरनेट का। और इट वाज गोइंग गुड एक्चुअली, सेशन बहुत अच्छा जा रहा था। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो काइंडली पोस्ट करते रहें ताकि जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वी कैन कह लेंगे हम खालिद भाई के ज्वाइन करने पे उनको ले सकते हैं। जी 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 खालिद भाई, कैन यू हियर अस? आई थिंक वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन। इंटरनेट का काफ़ी मसला आ रहा है, और आई होप यू गाइस कैन हियर मी एक्चुअली। अगर तो आप मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली एक कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। जी जुबैर भाई, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं वापस आ गया था जल्दी से, मैं कहा कुछ क्वेश्चन आंसर करिए तब तक, या आपका कोई सवाल है पहले आप? जी खालिद भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के, मैं शो कराता हूँ। आमिर हुसैन साहब का क्वेश्चन है। जी ये स्क्रीन पे ले आइएगा, मुझे इजी रहेगा। जी, वी हैव क्राइटेरिया अमेज़न फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट हंटिंग टू वैलिडेट प्रोडक्ट वैल्यू। लेकिन जब तक कोई टूल्स नहीं है, जी बिल्कुल, जब तक कोई टूल नहीं है हमारे पास तो हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमने कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म सब पे बीएफ टेक्नोलॉजीज में भी, के प्राइस रेंज जो है प्रोडक्ट की, जब आप एज अ न्यू सेलर स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है, ये मैं हर दफ़ा वजाहत कर रहा होता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैन्युफैक्चरर हैं, आप अगर तौलिए बना रहे हैं तो आप तौलिया ही बेचेंगे, आप मोबाइल फ़ोन नहीं बेचेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, आप तौलिए बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप वही लिस्ट करेंगे जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है। जिनके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं होती उनके लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि प्राइस रेंज, मैं पर्सनली सजेस्ट कर, दराज की सजेशन होती है, दराज इनसाइट बुक जारी करता है हर 6 महीने में, तो उस इनसाइट बुक के मुताबिक 1500 रुपए से कम प्राइस वाली प्रोडक्ट बेहतर सेल होती है, ज़्यादा सेल हो रही होती है। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ 800 रुपए से कम वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करें आप।
एक यहाँ सवाल भी आया हुआ था कि जो अब्यूजर बायर जो अब्यूज करते हैं, ये वाकई चांसेस होते हैं, कैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कुछ हद तक है बायर भी अब्यूजर हमारे पास, तो इसलिए जब वो आपका लॉस होगा तो वो बहुत कम होगा। दूसरा, बहुत सारी प्रोटेक्शन हम बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर वो इस तरह से प्रोटेक्ट कर ले खुद को, तो फिर जो है आपके साथ बायर अब्यूज नहीं कर सकता। बेसिक गाइडलाइंस है कुछ, उनको फॉलो करें। तो प्राइस रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है, मिनिमम जो है 100 रुपए से लेकर आप 100 से कम भी कुछ प्रोडक्ट आ जाती हैं, तो फिर हम बंडल बना लेते हैं, पैक ऑफ 4 कर लें। 30 रुपए की प्राइस है तो उस पर 20 रुपए पैकेजिंग का खर्चा आ जाता है, वो आप एक नहीं बेच सकते 30 रुपए की प्रोडक्ट जो है, फिर आपको पैक ऑफ 4 साथ में करना पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं 100 रुपए की प्रोडक्ट कम से कम 20 रुपए उस पर प्रॉफिट होगा, तब पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो आपकी निकल आएगी। और मैक्सिमम 800 रुपए तक होना चाहिए। आपका जो गूगल ट्रेंड्स पे हम रिसर्च करते हैं, उसमें इंडेक्स जो है 25 से अबव होना चाहिए, सर्च इंजन इंडेक्स गूगल ट्रेंड्स का, और 75 तक होना चाहिए। 75 से अबव बेहतर होता है, लेकिन उसमें कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में एग्जांपल दे रहा हूँ, बेबी डायपर आप सर्च करें, उसका ट्रेंड्स जो है 50 से स्टार्ट होता है, 90 तक जा रहा होता है, तो उसमें कंपटीशन भी उतना ज़्यादा आएगा। बेबी डायपर बहुत टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, दराज के प्लेटफॉर्म पे भी ओवरऑल ऑनलाइन टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ये एग्जांपल। लेकिन 75 से अबव अगर आप देख लेते हैं इंडेक्स गूगल का, तो आप कंपटीशन ज़्यादा अज्यूम करके, आपको ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन में आपका मार्केटिंग बजट इजाफी रिक्वायर होगा आपको रैंक करने के लिए। हम ओवरऑल रैंकिंग मार्केटिंग के जरिए कर रहे होते हैं, और वो सारी कैंपेन्स हमारी फेसबुक और गूगल पे चल रही होती हैं। सही सही, बड़ा आपने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से उसको डिटेल में। सेकंड है ये वाला क्वेश्चन सर, अलमास अहमद चीमा साहब का। जी जी, अब्यूजर बिहेवियर जो है बायर्स का ये है। एक मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो जी बिल्कुल, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, मेरे ज़ाती 2 अकाउंट्स हैं दराज के ऊपर पर्सनली, जो मेरे अपने नाम पे या अपने बिजनेस के नाम पे हैं। इसके अलावा 4 अकाउंट हम मेरे घर के हैं, मतलब मेरी वाइफ भी ऑनलाइन सेलिंग कर रही होती है दराज पे, एक और अकाउंट है हमारा चल। इसके अलावा हम बतौर टीम एज 13 अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, और ये 5 साल आई थिंक अगेन थोड़ा सा इशू आ गया है, और आप सब काइंडली मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, कोई मेरी तरफ से तो इशू नहीं है। काइंडली कोई एक बंदा जो है वो कमेंट कर दे, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि दिस इशू इज़ नॉट फ्रॉम माय साइड। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, इंतहाई माजरत, व्यूवर्स जितने भी हैं हमारे, उनसे माजरत, मेरा इंटरनेट कनेक्शन सस्टेनेबल नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा था अब्यूजर बायर के बिहेवियर के हवाले से। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक 4-5 सालों का एक्सपीरियंस, 13 स्टोर्स का एक्सपीरियंस, उसमें हमारे पास 5 सालों में सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं जिसमें कस्टमर ने इस तरह अब्यूज करने की कोशिश की, या दरमियान में कुछ और हुआ। एक केस की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर टाइम है तो मैं बता देता हूँ। पहले ये हमारे ज़ाती स्टोर का नहीं है, हमारे करीबी दोस्त का हुआ था इशू। दरमियान में प्रोडक्ट चेंज हुई। एक तो अब्यूजर सिर्फ बायर नहीं होता या सेलर नहीं होता, दरमियान में जो मैं पहले बात की, ओवरऑल हमारा बहसीत कौम जो अखलाकी दायरा कार है वो बहुत छोटा है, तो वो इशू है। उस वजह से एक प्रोडक्ट थी 600-700 रुपए की प्रोडक्ट कस्टमर को भेजी गई, वो हमारे करीबी दोस्त है, हमारे ऑफिस से उनका मेंटेन हो रहा था। कस्टमर तक पहुंची कुछ और, कस्टमर ने रिटर्न कर दी। मुझे जो है 100 रुपए की प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट भेजना तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि गलत प्रोडक्ट भेजी गई है, वो भले 100 रुपए की हो 800 रुपए की हो, ये दूसरा मसला है, लेकिन गलत प्रोडक्ट भेजना ही गैर अखलाक की बात है। भले आपने 400 की प्रोडक्ट के बजाय 800 की भी भेज दी, गलत भेजी है, तो मतलब कि आपने बायर के साथ अब्यूज किया है, गलत किया। भले आपने इजाफी भेज दी, गलत प्रोडक्ट भेजना है। हम सब हैरान हुए कि ये क्या चक्कर है हमारे ऑफिस में। सबसे पहले हमने अपने ऑफिस में इत्तेफाक से हमारे ऑफिस में CCTVs है, तमाम तक पैकेजिंग का काम जो FBS होते हैं वो हमारा नजर आ रहा होता है। हमने कहा हो सकता है
अक्सर होती है, मैं ये मिसाल भी देते, पैकेजिंग में गलती हो जाती है, लेकिन वो आइटम जो बायर ने क्लेम किया कि मुझे ये मिला है, वो आइटम हमारे किसी स्टोर में नहीं, या हमने 13 स्टोरों में कहीं पर भी वो आइटम था ही नहीं। तो हमने कहा ये हुआ क्या है, हमने चेक कराई सीसीटीवी जो उनकी जैसे ऑर्डर निकला था, हमारे तरफ से ऑर्डर सेम पैक हुआ है। अब या तो बायर ज्यादती कर रहा है हमारे साथ, हमने वो सीसीटीवी निकाल कर दे दी दराज को, क्लेम डिपार्टमेंट को, ये हमारा ऑर्डर है, ये इस वक्त पैक हुआ है, आपके हब इस वक्त पहुंचा था, ये देख लें आगे कहाँ मसला हुआ है। तो ओवरऑल जब आपकी ओवरऑल सेलर रेटिंग भी बेहतर हो, तब आपकी टीम भी जो है आपके साथ सपोर्ट कर रही है। तो दराज की टीम ने ओवरऑल उसको मॉनिटर कराया कि कहाँ इशू हुआ है। अब बायर के साथ बातचीत की गई, बायर कहता है मेरे पास वही आया है, उसके पास कोई वीडियो वगैरह तो नहीं थी। अब अखलाकन हमें मान लेना चाहिए, कस्टमर क्यों 400 रुपए की प्रोडक्ट के लिए जो है 2 नंबरी करेगा, गलत बयानी करेगा। तो जिस कोरियर पॉइंट से गया था दराज हब के बाद, दूसरे सिटी में एक कोरियर कंपनी में, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, कोरियर कंपनी के ऑफिस से वो डिलीवर होना था, उस कोरियर कंपनी के ऑफिस में वो पार्सल चेंज हुआ है। दराज के फ्लायर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, अब बहुत सस्ती हुई है, और सीरियलाइज फ्लायर जारी हुए अब 2 महीने पहले, वो उससे कुछ प्रोटेक्शन मिले। वो फ्लायर क्या करते थे, कोरियर कंपनी वाले ने फ्लायर लेकर रखे हुए हैं, 200 रुपए के फ्लायर है, हमारा जो पार्सल है उसको फोटो कापी मशीन में रखा, उनकी सीसीटीवी के मुताबिक उन्होंने फोटो कापी मशीन में रखा, उस शिपिंग लेबल कॉपी किया, पार्सल को खोल कर वो सामान निकाला, नए पार्सल में शिपिंग लेबल डाला जो उसने कॉपी किया था। तो क्योंकि शिपिंग लेबल वैसे निकाला नहीं जा सकता आपका सीधा, हम जिस तरह पैक करते हैं, तो उन्होंने कॉपी करके वो डाला और कस्टमर को अपनी 100 रुपए की प्रोडक्ट भेज दी। दरमियान में अब्यूज हो रहा होता है। कहने का मकसद ये था कि बायर अब्यूजर को बहुत कम है। ओवरऑल अगर एग्जांपल ले 3 से 5% बायर अब्यूजर है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है। हालांकि सेलर्स ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग रो रहे होते हैं कि 90% लोग अब्यूजर हैं, लेकिन 5% तक बायर अब्यूजर होता है। कुछ लोग पाकिस्तान में पैदा ही अब्यूज करने के लिए हुए हैं ना, ये हकीकत है, मान ले आप। कुछ लोग पैदा इसलिए हुए हैं, उन्होंने ज्यादतियां करनी है, उन्होंने 2 नंबरी करनी है, उनको खुदा ने भेजा इसलिए था, तो आप उनके साथ कुछ कर भी नहीं सकते। ये जो कोरियर का बंदा था, ये भी उन 5% में से था जिसको खुदा ने भेजा ही 2 नंबरी करने के लिए, वरना 400 रुपए की प्रोडक्ट के लिए कौन अपना ईमान खराब करता है। 400 की प्रोडक्ट निकाल के 100 रुपए की दूसरी डाल दी, 300 रुपए का प्रॉफिट। तो कुछ लोगों को खुदा ने भेजा इसलिए, स्पेशली हमारे साउथ एशियन रीजन के अंदर, जाओ बेटा 2 नंबरियां करो, तो उनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। उस तरह के इश्यूज होते हैं, लेकिन आपके पास हमें क्लेम कंप्लीट मिल गया, कस्टमर को भी रिटर्न हो गया, और उस बंदे की नौकरी चली गई। अल्टीमेटली जब पकड़ा गया बंदा तो उसकी नौकरी चली गई। ये की पॉइंट होते हैं अगर आप प्रोटेक्शन अपनी कर लेते हैं। दराज की पैकेजिंग गाइडलाइन में है कि जब आप पैकेज पैक कर रहे हो तो उसकी वीडियो बनाएं। आपके ऑफिस में सीसीटीवी नहीं है तो मोबाइल से बना लें। अगर आपके पास वीडियो क्लेम नहीं है, अगर कोई कस्टमर क्लेम कर रहा है आपके पास नहीं है, तो दराज कस्टमर को सही मानेगा और आपके ऊपर जुर्माना आयद होगा गलत प्रोडक्ट भेजने का। अगर आप एज अ सेलर ये पॉइंट्स, मैं अक्सर कह रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ये जो हम टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने से पहले खुदारा पढ़ लें। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है आप तभी क्लेम कर सकते हैं सेलर, अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तभी क्लेम कर सकते हैं जब पैकेजिंग की आपने वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो नहीं है तो आप क्लेम नहीं करेंगे। मतलब जो कस्टमर ने कह दिया वही 100% सही है, उसके बाद तब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो भी है आपके साथ ज्यादती कस्टमर ने की है या दरमियान में कहीं पे हुई है, वो ज्यादती आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने टर्म्स ऑफ सर्विसेज की जो है खिलाफ वर्जी की है, आपने पूरे नहीं किए थे अपनी जिम्मेदारियां। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो तो फिर जो है कस्टमर बिहेवियर जैसा भी हो आपके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। सही। तो खालिद भाई ये चीज तो FBS में आती होगी, यानी फुलफिल्ड बाय सेलर में। FBD में तो दूसरा सवाल लाएंगे सामने तो हम उस पे बात करें। जी खालिद भाई आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? जी FBD में तो हो नहीं सकता बायर, क्योंकि एक तो पहले तो वो FBD से जो जाती हैं उस पर रिटर्न एड्रेस भी दराज वेयर हाउस का लगा है, कस्टमर भी, और जो दरमियान। जी आपके FBS में इशू होता है, FBD में वाकई नहीं होते, क्योंकि FBD में ये है कि कस्टमर तक जो जा रही है प्रोडक्ट उसके ऊपर रिटर्न एड्रेस जो लिखा होता है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि दराज के वेयर हाउस से आई है प्रोडक्ट। दराज के वेयर हाउस में तो ओवरऑल सिक्योरिटी है, वहां से गलत प्रोडक्ट पैक होता है। अगर किसी कस्टमर तक गलत पैकेजिंग में गलती हो सकती है, ये मानने वाली बात है। हमारे पास हुई कई बार, मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, गलत प्रोडक्ट पैक की तो 2 कस्टमर के पास गलत जाएगी। हमने
कस्टमर ए को भेजना था मोबाइल फ़ोन, लेकिन कस्टमर बी को चार्जर, तो हमने गलत अगर पैकेजिंग लेबल, शिपिंग लेबल गलत डाल दिया। ये गलतियाँ दराज के वेयर हाउस में भी हो सकती हैं। सब इंसान काम कर रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं है दराज के वेयर हाउस में। अगर है तो कोई एक दो, लेकिन पैकेजिंग का काम अमेज़न की तरह रिपोर्ट्स नहीं कर रहे, वो इंसान कर रहे हैं, तो इंसानों से ये छोटी-मोटी गलती हो सकती है पैकेजिंग वाली। अगर गलती हुई है तो दराज का कस्टमर रिटर्न करेगा, फ्री रिटर्न है, और एफबीडी में दराज मॉल पे तो 14 दिन का रिटर्न है। वहां पर लेकिन अब्यूज नहीं कर सकता कस्टमर फिर, या दरमियान में कोई भी, क्योंकि सबको पता है रिटर्न लेबल जो है लगा हुआ था वो दराज का लगा हुआ है, वेयर हाउस का एड्रेस लगा हुआ है, तो वो दराज के प्लेटफॉर्म से निकला। ठीक हो गया जी। एज पर पॉलिसी नहीं है, दराज की जितनी पॉलिसीज लिखी हुई है उसके मुताबिक आप इंडिविजुअल अकाउंट बिजनेस में अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस है। हमारे करीबी दोस्त ने करा लिया है, इंडिविजुअल अकाउंट बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड हो जाते हैं, लेकिन एज पर पॉलिसी में अगर आप जाएंगे सेलर सपोर्ट को डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो वो इनकार कर देंगे। जी सर, दूसरा सवाल लाएंगे। जी, ये शहजाद साहब का क्वेश्चन है, रिटर्न में दराज स्टाफ अब्यूसिव बिहेवियर फिक्स करने का सजेस्ट कर दें। इसका आंसर हो गया जुबैर भाई। ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा, मैं द्रास में सेलर सपोर्ट की तरफ से अभी बायर का पूछ रहे हैं। अगर ये स्क्रीन पे लाए सवाल मुझे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है कहीं कमेंट्स में, मुझे ना। जी जी, कमेंट्स में है, बट मैं स्क्रीन पे भी ले आया हूँ, आप ये चेक कीजिएगा। आई हैव रिटर्न में दराज स्टाफ अब्यूजिव बिहेवियर फिक्स करने। अगर आपके पास रिटर्न में पहले तो एक होते हैं डिलीवरी फेल वाले रिटर्न। जी बिल्कुल, अब नज़र आ गया मुझे स्क्रीन पे। एक तो रिटर्न में होता है कि आपके पास डिलीवरी फेल के आइटम्स आते हैं, उसमें अक्सर सेलर्स को जो इशू आ रहा है उसमें ये नज़र आता है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपका सपोर्ट जो हब का स्टाफ है वो आपको इन्फॉर्म करता है, और 2 दिन के अंदर आपने पिक कर लेना होता है पार्सल जो डिलीवरी फेल में आए हैं या रिटर्न में आए हैं पार्सल्स। आपके स्टाफ दराज के जिस हब में आप ड्रॉप करते हैं उसी हब में आते हैं। आपको ईमेल भी आती है, आपको मैसेज भी आता है रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल पे। अगर 48 घंटे में नहीं करते तो एज पर पॉलिसी दराज को ये हक है कि वो आपका पार्सल ज़ाया कर दे, बेच दे, जो भी करे, दराज की प्रॉपर्टी है। 48 घंटे के बाद वो अक्सर स्क्रैच कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं चीज़ें। तो अगर आपका 48 घंटे में रिसीव नहीं कर रहे फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ईमेल नहीं आ रहा तो आप अपने वेंडर मैनेजर को, हायर अथॉरिटीज़ को ईमेल करें कि आपके पास ईमेल ही नहीं आया था जो रिटर्न वाले पार्सल है और आपको नहीं मिला, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी, विदाउट सर्टिफिकेशन नहीं सेल कर सकते। जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स एंड गेटेड कैटेगरीज, उसके लिए ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमिर हुसैन साहब का। Selected product Daraz has 3 sellers for 40 plus G. I check on Google search results showing my results selected product. When I checked in Google Trends, keywords when no data is available for the product. देखिए, अगर 40 सेलर सेल कर रहे हैं, 40 प्लस प्रोडक्ट, 50 प्लस रिव्यूज है, तो 50 प्लस रिव्यूज एक प्रोडक्ट पे है कितने ओवरऑल, ये आप देख लें। अगर रिव्यूज है तो मतलब कि सेल तो जनरेट हुई है, ओवरऑल सेल कितने अरसे में जनरेट हुई है, इस बात को देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, कीवर्ड, उसके डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। कहीं पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट कीवर्ड यूज, जैसे डाइपर की एग्जांपल लेता हूँ। पाकिस्तान में 70% पॉपुलेशन जो है हर डाइपर को पेम्पर समझती है। पेम्पर का कीवर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा होता है, बेबी डाइपर का कम सर्च हो रहा होता है। तो ये इश्यूज होते हैं पाकिस्तान। कीवर्ड डिफरेंट चेक करके देख लें। अदरवाइज अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और दूसरा हमने फेसबुक एड्स की बात की, अगर एड चल रहे हैं उस हवाले से गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट वाइबल है। हो सकता है वो गूगल में सर्च ना आ रही हो या गूगल के पास इतना डेटा ना हो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साद नसीर साहब का। जी,
یہ آئے گا اسکرین پہ. جی جی آ رہا ہے, یہ اسکرین پہ میری طرف شو ہو رہا ہے, آپ کی طرف نہیں ہو رہا؟ یہ ابھی تک اسکرین پہ نہیں آیا سوال مجھے, آپ بتا دیں میں کوشش کرتا ہوں آپ سے. آئی گیس وہ تھوڑا سا پھر پرابلم آ گیا ان کے انٹرنیٹ کنیکشن کا. آئی ول بی ٹیکنگ مور کوشچنس, ڈونٹ وری, ان شاء اللہ ہی ول بی بیک سون. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگوں کے کوشچنز ہیں جو رہ گئے. ان شاء اللہ یہ تھوڑی دیر میں ابھی خالد بھائی دوبارہ ہمیں ریجوائن کرتے ہیں تو وی کین گیٹ دا آنسرز آف دوز کوشچنس, تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے آنسرز مل جائیں. جی خالد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ جی کو, آپ کی آواز آ رہی ہے سر. جی یہ دیکھیے گا, یہ کوشچن ہے جی سعد نصیر صاحب کا. پروڈکٹ وچ از گیٹنگ, جی یہ وہ سملر سوال ہے, آپ ڈفرینٹ کی ورڈ سے ٹرائی کر لیں. سیم پروڈکٹ نیم شاید سرچ نہ ہو رہا ہو, لیکن گوگل کے اوپر اس سے ریلیونٹ کی ورڈ جو ہے وہ سرچ کر کے دیکھیں ٹرینڈز میں, تو آپ کو ڈیٹا مل جائے گا. یہ نیکسٹ کوشچن ہے محمد بن عرفان کا, ریکویسٹ ہے بلکہ کوشچن نہیں ہے. جی سر میں بتاؤں, سوری, یہ جو 90 سیلز پر ڈے والا کہہ رہے ہیں ان کو میں آنسر کر دیا کہ آپ ڈفرینٹ کی ورڈ جو ریلیونٹ کی ورڈ ہے ان سے گوگل ٹرینڈز پہ سرچ کریں. ڈیٹا یقیناً ہوتا ہے, ہم اکثر ایک ہی کی ورڈ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ریلیونٹ کی ورڈ سرچ کریں. ایگزیکٹ پروڈکٹ کا نیم نہیں ہوگا, لیکن باقی کی ورڈ جو ہے سرچ ہو رہے ہوں گے ٹرینڈز میں, اس کا ڈیٹا آپ دیکھ لیں کہ کیا ڈیٹا آ رہے ہیں انڈیکسز کے. جی خالد بھائی یہ ابھی پریکٹیکل دکھانا شاید پاسبل نہیں ہے, پھر کبھی ہم سیشن رکھ لیں گے. آج جس طرح کا انٹرنیٹ ہے تو ممکن نہیں ہے, 15-20 منٹ کا سیشن ہے ٹوٹل اسٹور ڈیکوریشن کا. ہم پھر کبھی سیشن رکھ سکتے ہیں اس پہ لائیو, ہم دکھا دیں گے اسٹور ڈیکوریشن کس طرح ہوتی ہے. جی یہ ماجد ضیاء صاحب کا کوشچن ہے. جی اسٹور ڈیکوریشن ہو گیا جبیر بھائی. محمد بن عرفان صاحب کا سوال تھا کہ اب جس طرح انٹرنیٹ ہے اس میں پاسبل نہیں ہے, پھر کبھی ہم سیشن رکھ لیں گے یا ہم ریکارڈ کر کے دکھا دیں گے آپ کو کہ کس طرح اسٹور ڈیکوریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جبیر بھائی. جی یہ نیکسٹ کوشچن لیجیے گا. یہ ابھی تک میرے پاس شو نہیں ہوا دوسرا. میرے پاس نہیں آ رہا دوسرا سوال سر. مجھے آئی تھنک ان کے نیٹ کا کافی ایشو آ رہا ہے, بہت انسٹیبل نیٹ ورک ہے. وی آر ریئلی سوری کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھا سیشن نہیں کر پا رہے, بیکاز کافی بریکس آ رہی ہیں اس میں. اور یہ آئی ایم ایکسٹریملی سوری کہ آج آپ کو یہ ڈیفیکلٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے, بیکاز وہ ایسے ایریا میں ہیں جہاں پہ وہ تھوڑا سا پرابلم ہے نیٹ کا, جس کی وجہ سے وہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں انہیں. ہوپفلی ہی از بیک, اور انشاءاللہ یہ آپ کے آنسرز دیں گے. جی یہ ماجد ضیاء صاحب کا کوشچن تھا. جی معذرت, brand sale 10 to 15 seller on Daraz. My own brand sale. Daraz should I enter on Daraz with lowest price or I offer seller them more discount. جو یہ آپ کی پرسنل اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی اپنی سیل زیادہ آ رہی ہے تو آپ خود ڈسکاؤنٹ دے کے, اور پروفٹ مارجن بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہے, یا جو ہے آپ سیلرز کو ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کہاں کس چینل سے سیل زیادہ آ رہی ہے. ڈفرینٹ سیلر سے زیادہ آ رہی ہے, اوور آل 10 جو سیلر سیل کر رہے ہیں ان سے, یا آپ کی پرسنل. یہ ڈپینڈ کا آپ کے شہر کون سا ہے. اگر آپ کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, تو وہاں پر مشکل نہیں ہونی چاہیے لوکل سورسنگ. ہم آج تک لوکل سورسنگ کا ہے, بہت کم ہم نے چائنا سے چیزیں منگائی اب تک, اور وہ اب تو بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا میرے لیے. تو ابھی چائنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, 4 سال پہلے آسان تھا لیکن اب بہت مشکل ہو گیا. Initially we can do FPT service, we have to sell product.
जी, एज पर न्यू पॉलिसी अब आपको पहले दिन से नहीं मिलती एफपीडी अनटिल अनलेस कि आपकी प्रोडक्ट वाइबल हो और दराज के पास ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के नंबर जो हो रहे हैं। लेकिन अब दराज कहता है पहले 90 डेज आप एफपीएस कर लें, 3 महीने और रिजल्ट दिखा दे। वो 90 डेज 30 डेज भी हो सकते हैं। अगर आपकी पहले 30 दिनों के अंदर अच्छी सेल जनरेट हो रही है, वो आप एफपीडी कर सकते हैं। फिर आप अच्छे रिव्यूज और कोई पॉलिसी वायलेशन वाली प्रोडक्ट भी नहीं है, रिव्यूज भी अच्छे थे, फिर भी प्रोडक्ट लॉक कर दे। अगर आपके पास किसी ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट थी जो गेटेड थी या अब गेटेड हो गई है, तो आपकी प्रोडक्ट लॉक कर दी जाएगी। जैसे कि मोबाइल एसेसरीज में हैंड फ्री अब गेटेड कर दिए गए हैं। अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है या आपकी ओवरऑल रेटिंग बेहतर नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट लॉक हो जाएगी। या हेल्थ कैटेगरी की जितनी भी प्रोडक्ट हैं पहले अलाउ होती थी, अब वो रिसेंटली गेटेड हुई कैटेगरी, तो आपकी प्रोडक्ट लॉक हो जाएगी। रिव्यूज भले आपका 5 आउट ऑफ 5 हो, 500 रिव्यूज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ऑथराइजेशन है और आपकी ओवरऑल सेलर रेटिंग भी बेहतर है, तो आप अपने वेंडर मैनेजर को ईमेल करके वो अनलॉक करा सकते हैं प्रोडक्ट। जी खालिद भाई, ये जी जुबैर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे या मैं यहाँ से देख लूँ? ताहिर बशीर साहब का क्वेश्चन है ये, कैन वी ओपन दराज अच्छे रिव्यूज हो गया क्या? again sorry for that, he will be back soon because his net is not stable at all actually, और थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं। बस मैं चाह रहा हूँ कि ये इनके आंसर्स मिल जाएं ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए आज के अपना सेशन से, और होपफुली ही विल बी बैक सून। और थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो कि रह गए, इंशाल्लाह ही विल बी आंसरिंग दोज एज वेल। जी खालिद भाई, ये क्वेश्चन था जी ताहिर साहब का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। जी बिल्कुल, अगर आपके पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, पाकिस्तान में आप ओवरसीज में रहते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट पाकिस्तान का ही रिक्वायर्ड है आपको। अगर आपका बैंक अकाउंट है, CNIC आपके साथ है, तो स्कैन करें और अकाउंट ओपन करा लें। लेकिन आपको मैनेज करने के लिए पहले 30 दिन FBS करेंगे तो पाकिस्तान में बंदा चाहिए होगा, या आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर कर ले जो ऑफर कर रही है मैनेज्ड अकाउंट सर्विसेज की। वो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी वेयर हाउसिंग सर्विसेज ले रहे हैं लोग? कोई ऐसा रिकमेंडेशन जो आप देना चाहें? जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे सर। ओवरसीज को जो अच्छा, एक हमारे करीब दोस्त है, मतलब सलाम दुआ है उनके साथ, रावलपिंडी में उनका ऑफिस है यूनिक क्रिएशंस के नाम से, वो प्रोवाइड करते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी। लाहौर में मुझे जहन में नहीं आ रहा, एक फर्द है जो कंपनी है, बल्कि ओवरऑल वो प्रोवाइड करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। उनके पास अपनी प्रोडक्ट भी है, आप भी अपनी प्रोडक्ट रखवा के कर सकते हैं। कोयटा में हम खुद कर रहे हैं जीवाजा लॉजिस्टिक्स के साथ मिलकर, लॉजिस्टिक सर्विस है लोकल कोयटा की, मैं को फाउंडर हूँ उसमें, तो हम उस सर्विस के तहत आपको कोयटा में प्रोवाइड करें। कराची का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन है, मुझे सर्च करनी पड़ेगी, शायद बहुत सारे लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं। जी खालिद भाई, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अब आई थिंक लोगों की क्वेरीज आंसर हो चुकी हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम हम स्टेबल कनेक्शन के साथ जो है वो आएंगे वापस, और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच खालिद भाई, आपने अपना टाइम निकाला, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर प्लान करेंगे एक्टिविटी, ताकि जो है ये आपके जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं अब इंशाल्लाह वो जो है आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम रिजॉल्व कर देंगे। टिल देन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।